Good morning, all of you. Welcome to the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Today, we are going to start with the chapter number 4, Principle of Mathematical Induction. Now, in this chapter, what we have to do, we have to just work on one particular common concept, and on the basis of this concept, the whole chapter will be covered. And there is just one exercise, so it is very easy and a small chapter. So let me start with the chapter. In simple language, we can say the word induction means the generalization from particular cases or facts. Here the word induction, it means is clear here. In simple language, we can say the word induction. The meaning of induction is the generalization from particular cases or facts. We have to generalize the particular cases or facts. Induction means is this. Let me start with this concept. What is the concept behind this chapter? In this chapter, whatever the n is here, that n is belongs to the natural number. Pn is a given statement and n is a natural number. Here we will take n as equal to 1. If this statement is true, then we will move on the second statement, that is n is equal to k. N is equal to k, that is our assumption that it is true for it. And the third is n is equal to k plus 1. अभी तक मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन 3 स्टेप्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है. अगर आपको ये तीनों स्टेप क्लियर हैं, देन यू कैन ईजिली डू दिस होल चैप्टर. मैं एक बार एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रही हूँ कि हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. तो नाउ सी द एग्जाम्पल. All of you know the sum of n term that is equal to n plus 1 by 2. ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो हम इसको एक बार चेक कर रहे हैं कि इज़ इट ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नंबर. कोई भी नेचुरल नंबर है तो सब पे ये वेरीफाई होता है कि नहीं हो रहा है. तो लेट वी स्टार्ट. तो अभी मैंने बताया पहला स्टेप क्या है, n इज इक्वल टू 1. सेकेंड स्टेप इट n इज इक्वल टू k एंड थर्ड इज k प्लस 1. तो लेट वी स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1. n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 मीन्स द फर्स्ट टर्म. The value of first term is 1, and here the value of n, that is 1 I am taking here. So here in place of n we will put down 1. 1 plus 1 2 upon 2. So after solving that we get the 2 upon 2, that is also equal to 1. So left hand and the right hand, both of them are equal. It means that for the n is equal to 1, it is true. So this statement is true. If the statement is true, then we will move to the second step. In the step 2, मैंने आपको already बताया, that is our assumption that pk is true for some positive integer k. तो pk is true for, here p is what, we take it as a pn. So pn is this statement. तो pk is true for positive integer. तो ये हमारा assumption है, k वैल्यू के लिए ये ऑलरेडी हमारा assumption लेके चल रहे हैं कि ट्रू है. तो हमने क्या किया, जहाँ पर भी n है वहाँ पर हमने k की वैल्यू k पुट कर दिया. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 k एंड दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई 2. इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया. नाउ द थर्ड स्टेप इज n इज इक्वल टू k प्लस 1. फॉर द n इज इक्वल टू k प्लस 1, नाउ वी शैल नाउ प्रूव दैट. इन दिस स्टेप वी विल प्रूव दैट द pk प्लस 1 is also true. Now in this step we will prove this. So what we have to do now, in this step, in place of n we have to put k plus 1. So 1 plus 2 plus 3 k plus 1. As all of you know, the second last term will be k and the last term will be k plus 1, as 1 we are adding in each of them. Now that side it will be k plus 1 k plus 2 upon 2. Now we have to prove that the left hand and the right hand are equal. So let me take this side. So as we know that from here to this is equal to k plus 1 by 2. So from equation 1, in place of it, can we write down this k plus 1 by 2, and what is left here, k plus 1. So मैंने इसको यहाँ लिख दिया. ठीक है. अब इसके बाद हमने क्या किया, whenever we have to solve them, be careful in your mind कि whatever the common is here, first of all take it out common. तो हमने क्या किया, यहाँ से k plus 1 कॉमन ले लिया. So what is left, k by 2 plus 1. So after solving k plus 1 and after taking the LCM, we get that k plus 2 upon 2. Now you can see that it is same as like this. So it means that left hand is equal to right hand, and that is proof for the all natural number.
So in this way we can solve it. I hope that all of you get clear this. Now let me come on the exercise 4.1. मैंने एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ले लिया है ताकि आपको क्लियर भी होता जाए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे. एक और क्वेश्चन मैं करा रही हूँ. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 + 3 स्क्वायर 3 to the power n minus 1 and equal to 3 to the power n minus 1/2. ठीक है. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. तो पहले हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को Pn ले लिया ताकि जैसे हम Pk ले रहे हैं, Pk + 1 ले रहे हैं, तो ईजिली वी कैन वेरीफाई कि ये क्या है. तो Pn हमारी ये स्टेटमेंट हो गई. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप. या परफेक्टली ओके. n इज इक्वल टू 1. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. तो n की जगह हमने 1 पुट कर दिया. तो n की जगह 1 पुट किया तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द फर्स्ट टर्म. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लिया. नाउ दिस साइड, अब n की जगह क्या आ जाएगा, 1. 3 to the power 1 minus 1/2. After solving this we get the 1. So 1 is equal to 1. It verifies the result. That means for the 1 n is equal to 1 it is true. Second step क्या था हमारा, yes, pk is true for some positive integer k. जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसके लिए ये ट्रू है. तो हमने ये अजम्पशन है हमारा ऑलरेडी. तो व्हाट वी हैव टू डू, जहाँ पर भी हमारा n है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, k. तो हमने वहाँ पे k पुट कर दिया. 3 to the power k minus 1 is equal to 3 to the power k minus 1/2. So this is the equation 1. We will consider it as a equation number 1. अब now what we have to do, we have to prove it for the p is equal to k plus 1 is also true. That is we shall prove. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो हमें बेसिकली हमने क्या किया, जहाँ पर k था वहाँ पे अब k + 1 पुट कर दिया. बी केयरफुल अबाउट दिस वन स्टेप. जब भी हमारा k + 1 पुट करेंगे तो हमने सेकेंड लास्ट टर्म इसको ज़रूर लेनी है, क्योंकि k + 1 से पहली वाली टर्म हमारी k वाली होगी. तो वहाँ तक हमें ज़रूर लिखना है. अब इन प्लेस ऑफ k व्हाट वी हैव टू पुट k + 1. तो यहाँ पे k - 1 था, तो k + 1 - 1 इट विल बिकम k. तो 3 to the power k हो जाएगा. इन द सिमिलर वे k की जगह क्या करना है, k + 1 - 1/2. तो दिस वी हैव टू प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड दैट इज इक्वल टू दिस राइट हैंड. तो अब इस पोर्शन को हम लोग ले रहे हैं जैसे हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में किया था. अब यहाँ तक सेम वैल्यू है इक्वेशन 1 की. तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट डाउन 3 to the power k minus 1/2 plus 3 to the power k. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, हमने इसका एलसीएम ले लिया. ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से रखना. आप क्या करते हो, 3 × 2 = 6 k लिख देते हो. ये छोटे बच्चों वाली मिस्टेक है. बी केयरफुल अबाउट इट. 2 × 3 to the power k एंड इन दोनों के पास 3 to the power k है. तो वी कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम ओनली दीज टू, नॉट फ्रॉम -1. ये छोटे छोटे स्टेप मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे सब में से कॉमन ले लेते हैं. तो 1 + 2 - 1/2. 1 + 2 is 3. तो इट विल बिकम 3 to the power k + 1 - 1/2. इट इज़ सेम एज दिस. सो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारा इक्वल हो गया. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर द कॉन्सेप्ट. और आपको बिलीव नहीं करोगे, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर है. चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग. आई एम टेकिंग हियर क्वेश्चन नंबर 3. 1 + 1/1 + 2 and in this way this is the question and this is equal to 2n/n + 1. तो सेम लेट द स्टेटमेंट pn को हमने ये स्टेटमेंट ले लिया. नेक्स्ट n इज इक्वल टू 1 पुट किया. n की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो इधर फर्स्ट टर्म आ जाएगी, इधर n की जगह 1 आ जाएगा. एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारा इक्वल हो गया. अब नेक्स्ट क्या किया, एज्यूम किया pk इज़ ट्रू. तो n इज इक्वल टू k ले लिया. जहाँ पर भी n था वहाँ हमने k लिख दिया और इसको हमने क्या कंसीडर करना है, इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर द k + 1. तो k + 1 के लिए अभी मैंने बताया सेकेंड लास्ट टर्म ये हो जाएगी, लास्ट टर्म हमारी k + 1 हो जाएगी. ठीक है. और जहाँ पर भी यहाँ k था वहाँ पे k + 1 ये हमें प्रूव करना है. अब सिमिलर वे सेम इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ एक सीरीज़ चल रही है 1 + 2 + k + 1. मैं यही ब्रैकेट में ही बता रही हूँ. अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया है n, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, n + 1/2. ठीक है, ये आप लोगों को पता है. अगर यहाँ n की जगह n + 1 टर्म ले रहे हैं तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, n + 1 आ जाएगा.
if there is n plus 1 term, then we can write down n plus 1 n plus 2 upon 2. तो हमने यही किया, इसकी जगह हम लोग ने लिख दिया k plus 1 k plus 2 upon 2. तो 2 ऊपर होकर रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने पहले ही बताया कि जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे, डोंट कैलकुलेट इट. तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन क्या था, k plus 1, तो k plus 1 वी टेक इट आउट कॉमन एंड द 2 ऑल्सो. तो व्हाट इज़ लेफ्ट, k plus 1 अपॉन k plus 2. अब सिंपल सा काम क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. अब कुछ भी कॉमन बाहर नहीं आ सकता. नाउ टेक द एलसीएम. अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, या परफेक्टली ओके, k plus 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया. And it will be cut down, and what is left, 2k plus 1 upon k plus 2. It is same as this. So in this way we have to do this questions. I hope that student all of you get clear this concept. Now all of you have to do some questions. You have to do question number 1 again, 2, 3, 4 and 5. Till 5 questions you can try these questions. Thank you student and have a nice day.